Hello everyone. So today we are going to start a new topic. Last time we finished one topic which is force exerted by jet on stationary plate. Okay, we have started the applications of momentum equation in which first of all we studied about force exerted by jet on stationary plate. Okay, so we studied all the cases here. Let me revise for you that one case is that when the plate is vertical but it is fixed. Second case is when plate is inclined. Okay, third case is when plate is curved. Okay, fourth case is in this case curved case. First case is when the jet strikes at the center. Second case is when jet strikes at tangentially. Okay, and here we study two cases which is unsymmetrical and symmetrical case, in which we studied that in case of symmetrical case the angle made at the inlet and the outlet are same. Okay, but in case of unsymmetrical curved plate, okay, in case of unsymmetrical curved plate what happens, uh, the angle made at the inlet and the outlet will be different. Suppose here it will make angle theta and it will make angle here phi. Okay, so this is all about force exerted by jet on stationary plates. So today we are going to start our next topic which is force exerted by a jet on moving plate. Okay, last time we studied stationary plate. Here when the jet strikes the plate also moves with it. Okay, suppose the jet is striking this plate at here. When this jet strikes this plate also moves along the direction of the jet. Okay, so we will discuss one by one all of them. First of all we study force on flat plate. Okay, moving in the direction of jet. Okay, similarly vertical plate, here we are talking about vertical plate like this and jet is striking here. Okay, so let us see its diagram. See here. Here we are considering that let a jet of water, here is a water which is striking, wait, this is the jet of water, okay, which is striking this plate. Okay, due to this pressure what happens, the plate also moves along with it, along the direction of the jet. Okay, so let us suppose that this v is the velocity of the jet and a is the cross section area of the jet, small a is the cross section area of the jet and u is the velocity of flat plate. Okay, with which this velocity this plate moves is known as let us assume that it is u. Okay, so v is the velocity of the jet, u is the velocity of the plate and a is the cross section area of the jet. Okay, now what happens, in last cases we studied that the jet and doesn't let when the jet strikes the plate. Okay, so its velocity will be v and then its final velocity becomes 0. But in this case what happens, the plate is also moving it, so the jet does not strike the plate with the velocity v here. Okay, it does not strike with velocity v but it strikes with a relative velocity. Okay, relative velocity which is v minus u. Okay, what is relative velocity? Relative velocity is velocity of one object with respect to other. For example, a motorcycle, let us take a motorcycle is traveling in a highway and it passes a car. Let us suppose that the speed of the motorcycle is about 120 kilometer per hour. Okay, at the same highway car is traveling, let us suppose its speed will be 90 kilometer per hour. And if you are asked that you have to find the relative velocity, okay, the motorcycle has to pass this car, then the relative velocity of these is 120 minus 90 which is 30 kilometer per hour. Okay, this is the relative velocity of this. So same case here, that jet does not strike with the velocity v here but it strikes with the relative velocity which is the velocity of the jet is v and the velocity of the plate is u. So relative velocity is becomes v minus u here. Okay, so uh, as you know that these are all the applications of momentum equation. Now what is momentum equation, I will repeat it again, that momentum equation, the flow force exerted by a fluid. Okay, force exerted by a fluid is equal to what, is equal to the rate of change of momentum, that is d of mb, which is momentum is equal to what, mass into velocity divided by time per unit time. This is momentum equation. So let us solve this. So as you know, you are understand that here we take relative velocity here. So see here,
Then mass becomes what? See here, the mass of striking plate, mass is equal to what? As I already told you many times, that density is equal to mass upon volume, and mass becomes what equal to density into volume. Okay, so how can we write volume? We can write volume as we can write volume as, mass as density into volume, and volume we can write as area into some unit distance. Okay, so this unit distance, as you know, we are talking about a mass of water striking per second. Okay, so area, I will write it again, area into unit length, which is in meter, upon it is saying that per second, so it is second, meter per second is the velocity, so area into velocity into rho. So from here this term came. Okay, rho into area of jet into velocity with which jet strikes the plate. Okay, now rho is rho, and area of jet we considered in the starting as small a, and what is the velocity with which jet strikes the blade? It is relative velocity, which is v minus u. Okay, so we find here that this is mass of water striking per second. Now the force exerted is equal to what? It is equal to, force is equal to mass of water striking per second into what? Initial velocity with which water strikes minus final velocity. Okay, I told you one thing in the last lecture, that when we take initial minus final, and when we take final minus in final minus initial, here the jet strikes the plate. Okay, if we are talking about force exerted by the plate on the jet, then we take final velocity minus initial velocity. Okay, but here we are talking about force exerted by the jet on the plate, so that's why we are taking initial velocity minus final velocity. See here, mass of water striking per second we already determined here, this one. Initial velocity is what? I told you that the initially with it strikes is v minus u, that is relative velocity, minus final velocity will 0. When it strikes this plate it becomes 0. Okay, the final velocity here is 0. From here we can easily calculate the force exerted by the jet on moving plate, okay, when the plate is vertical. Now one thing here is that we have seen that in the previous cases, in stationary cases, what happened, the plate is fixed, so there will be no work done. But in this case the plate is moving along the direction of the jet, so there will be some work done also. Okay, so we have to find work done also, and work done is equal to what? Work done is equal to what? Work done is equal to force, which we calculated here, Fx, into distance. This distance is interaction of jet. Okay, interaction of jet upon time. Okay, time. This, from this formula, that is work done equal to force into distance in direction of jet upon time. From here we can calculate work done. Force is we already know. Okay, and this distance in the direction of jet per unit time, this one is equal to u, which is the velocity of the plate. Okay, so from this you can calculate, wait, from this you obtain the formula for work done as rho a v minus u square into u. Okay, so this work done is, its unit will be what? फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, और वेलोसिटी के हो गए मीटर पर सेकंड. तो ये न्यूटन मीटर पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट भी बोलते हैं. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? वॉट के इक्वल होता है. तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन निकल जाएगा. ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस, कि जब हमारे पास प्लेट जो होगी हमारे पास जो होगी वर्टिकल होगी, और जो साथ में मूव करेगी. अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस. नेक्स्ट केस है फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट. नाउ द केस इज प्लेट इज inclined like this. Okay, the cases will be same as there in the stationary plates, but the only difference here is that it will be moving here, it is not stationary here. Okay, so when the jet strikes this plate, okay, what happens? Some water move here, some water move here. Okay, so with will, and in last time we discussed that when this strikes this plate and this plate is off, there will be no losses, or means this plate is smooth. So the velocity will be what? If we here with the velocity is v.
Okay, if the here is the velocity v, then along this there will be velocity v. Okay, but the here the case is of moving case. So you know, in moving case we don't take velocity v, we take relative velocity, which is v minus u. Okay, so let us discuss this one, that is force exerted, force on inclined plane moving in the direction of z. अब देखो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जहाँ से कोई जेट आ रहा है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जेट की वेलोसिटी v है, प्लेट जो है हमारे पास इंक्लाइंड है, यहाँ से दिख रही है आपको, ठीक है। उसके बाद प्लेट की वेलोसिटी क्या है, u। तो अब यहाँ से भी जो वेलोसिटी आएगी, अब ये देखो यहाँ पे मैंने शो की हुई है, मूव कर रही है प्लेट, ठीक है, इसकी प्लेस चेंज हो गई। तो हमने लास्ट केस में क्या देखा था, जब स्टेशनरी का केस था, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आती थी वो v आती थी। ओके, बट इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, सो दिस इज द u. So relative velocity of the jet vector becomes equal to what, v minus u. Okay, a is the area cross sectional area of jet and theta क्या है, ये वाला थीटा देखो, थीटा जो है दिस इज द एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। ओके, दिस जेट एंड प्लेट के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा ले लिया। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता लग जाएगी, द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, v माइनस यू। तो वहाँ से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, जैसे लास्ट केस में किया था सिमिलरली, रो ए v माइनस यू वहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं, देखो कि जब हम यहाँ से प्लेट स्ट्राइक किया, ओके, तो हमने ये प्लेट स्मूथ कंसीडर की है, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट की वजह से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। और जेट जो लीव करेगा यहाँ से इस इंक्लाइंड प्लेट से, लीव कहाँ से करेगा, इस साइड से और इस साइड से, तो उस केस में भी उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, दैट इज v माइनस यू ही वेलोसिटी रहेगी उस केस में भी। ओके, तो अब हमने मास निकाल लिया, ठीक है, जिस वो आ गया रो ए v माइनस यू। अब हम निकाल लेते हैं इसके बाद फोर्स। ओके, तो फोर्स वही मोमेंटम इक्वेशन वाली, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डी ऑफ एम वी, वेट डी ऑफ एम वी अपॉन डी टी। सेम फार्मूला आपका हर एप्लीकेशंस में सेम फार्मूला यूज़ होगा। ओके, तो ये तो मस्ट है आपके लिए कि आपको रिमेंबर होना ही चाहिए, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकल जाएगी हमारे पास, फोर्स क्या होगी, एफ एन। अब ये इंक्लाइन प्लेट है, तो मैंने क्या बताया था, प्रेशर कहाँ एक्सर्ट होता है, हमेशा नॉर्मल टू द प्लेट एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, तो मतलब ये हमारे पास फोर्स एक्सर्ट हो रही है एफ एन, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो देखते हैं अभी बाद में। पहले फोर्स एफ एन किसके इक्वल आ जाएगी, एफ एन, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, वेट, एफ एन हमारे पास आ जाएगा मास स्ट्राइकिंग पर सेकंड, जो हमने अभी निकाला वो था रो ए v माइनस यू के इक्वल, और इनटू व्हाट वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन, इन द नॉर्मल डायरेक्शन विद जेट स्ट्राइक्स। अब जिस डायरेक्शन में जेट स्ट्राइक कर रहा है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये तो कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा। तो इसलिए हमारे पास कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, v माइनस यू साइन थीटा, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, और फाइनल क्या होगी, फाइनल हमारे पास जीरो, क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जेट की जीरो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पे एफ एन जो था हमारे पास, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। मैंने क्या बोला था आपको, पहले भी बताया कि प्रेशर हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा, तो फोर्स क्या होगी, नॉर्मल एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v माइनस यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट लेके यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट आ जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं हम, इस नॉर्मल फोर्स जो हमने देखी, ये डायग्राम में देखो यहाँ पे शो की हुई है, ये जो नॉर्मल फोर्स है देखो, ये वाली जो एफ एन लिखी हुई है, इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, इस डायग्राम को देखो, ये वाली को। तो इस डायग्राम में मैंने क्या किया, रिजॉल्व किया, एक ये कंपोनेंट आ गया, एक ये कंपोनेंट आ गया, ये एंगल बना रहा था 90, तो और ये था हमारे पास, ये मैंने बताया आपको कि जेट और जो प्लेट एंगल बना रहे हैं वो थीटा है, तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और ये भी हमारे पास अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आ जाएंगे 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर एफ एक्स की डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना होगा इस केस में, तो हमारे पास एक्स की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, एफ एक्स किसके ऊपर आएगा, एफ एन, वेट, एफ एन कॉस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एन कॉस ऑफ 90 माइनस
थीटा। और एफ एन की वैल्यू तो आपने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो एफ एन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई वाला कंपोनेंट है वो कैसे निकल जाएगा, सिमिलरली एफ वाई के डायरेक्शन में कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, साइन वाला है। ओके, तो एफ एन किस केस के इक्वल आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा एफ वाई इक्वल टू एफ एन, एफ वाई इक्वल टू एफ एन साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और एफ एन की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स के कंपोनेंट है वो भी हमें इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास था इंक्लाइंड केस। यहाँ पे देख लो एफ एक्स का कंपोनेंट ये आ जाएगा हमारे पास, सिंपल एफ एन की वैल्यू पुट करनी है और वाई का कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था इन केसेस में हमें, जिस केस में प्लेट मूव कर रही है वहाँ वर्क डन भी होगा, तो वर्क डन किसके इक्वल बताया था मैंने, फोर्स इंटू डिस्टेंस पर सेकंड के इक्वल। तो फोर्स आपने निकाल रखी है एफ एक्स, तो वहाँ से, और डिस्टेंस पर सेकंड क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी किसकी आ जाएगी, प्लेट की, वो क्या है हमारे पास u। ओके, तो वहाँ पे सिंपल u की वैल्यू ऐड करनी है आपने और हमारे पास वर्क डन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास टू केसेस हो गए, फर्स्ट केस वर्टिकल का हो गया और ये हमारे पास हो गया इंक्लाइंड का केस। इसमें हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, ओके, एफ एक्स डायरेक्शन में और एफ वाई डायरेक्शन में। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट केस इज फोर्स। अब हमारे पास आ गया कर्व्ड प्लेट का केस। कई कई बार आपको एग्जाम्स में क्या पूछा होगा कि कर्व्ड प्लेट की जगह शायद लिखा हो कर्व्ड वेन। ओके, कर्व्ड वेन लिखा हो तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें सेम ही है। ओके, कर्व्ड वेन और कर्व्ड प्लेट दोनों चीज़ें सेम है। ओके, तो अब नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा फोर्स ऑन द कर्व्ड प्लेट व्हेन द प्लेट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये रही हमारे इसके बाद डायग्राम। ठीक है, केसेस सेम है जैसे हमने स्टेशनरी में किए थे, सेम वैसे ही हमने प्रोसीड करना है इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि इस केस में प्लेट मूव कर रही है। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया, एक कर्व्ड प्लेट अज्यूम कर ली। ठीक है, उसके सेंटर में जेट स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, एरिया ऑफ जेट a है और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। ओके, ये जो कर्व्ड प्लेन है इसकी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट क्या है, u है। ओके, अब सिमिलरली लास्ट केस की तरह मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी जो इसको स्ट्राइक करेगी वो किससे स्ट्राइक करेगी, v वेलोसिटी से नहीं करेगी, वो करेगी v माइनस u से, विच इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली जब जो यहाँ से क्या होगा, स्ट्राइक करेगा तो ये फ्लूइड होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। अगर हम अज्यूम करेंगे कि इस प्लेट में ये प्लेट स्मूथ है और इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जो बाहर की तरफ फ्लूइड निकलेगा वो भी क्या होगा, v माइनस यू ही निकलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इस केस में हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से जब फ्लूइड स्ट्राइक किया तो उसके बाद बाहर निकलेगा, किस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में। तो हमें चाहिए कौन सी डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन। तो इसलिए हम इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे वेलोसिटी के। ये वेलोसिटी तो है v माइनस यू। ओके, v माइनस यू ये वाली वेलोसिटी है, तो इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। ओके, तो अब क्या करेंगे एक्स डायरेक्शन में, सबसे पहले ले लेते हैं हम कंपोनेंट किसका, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो अब देखो इन द डायरेक्शन ऑफ जेट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v माइनस जो थीटा एंगल किससे बना रहा है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा। ओके, यही आ जाएगा। बट हियर देखो डायरेक्शन ऑफ जेट क्या थी, इस तरफ थी, पर ये बाहर आउटलेट की तरफ निकल रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हमें इसमें माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब हम ले लेंगे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, तो हमने ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, v माइनस यू। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हमने निकालना है क्या है, हमने निकालना है मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड। ठीक है, हर केस में आपको ये निकालना है मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तभी हमारे पास क्या निकलेगा, फोर्स निकल पाएगी। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। आगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स निकालनी है हमने, एक्स डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन जो जेट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में निकालनी है, एफ एक्स आ जाएगा वो। तो मास ऑफ स्ट्राइकिंग पर सेकंड, सिमिलर वही केस, रो ए v माइनस यू आ जाएगा। ये अब मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ ये कहाँ से आया है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया अभी भी वो एक बार फिर से वीडियो देख ले, उसको समझ आ जाएगा।
ओके। और सेकंड अब इनिशियल वेलोसिटी। अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास v माइनस यू, ठीक है, जब कर्व प्लेट को स्ट्राइक की तब तो हमारे पास यही वेलोसिटी थी। बट फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, फाइनल वेलोसिटी आई अपोजिट डायरेक्शन में। देखा था हमने कि हमने कंपोनेंट लिया था वो एक्स डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो वो क्या था, माइनस ऑफ v माइनस यू कॉस थीटा। क्योंकि एक बार आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, ऐसी डायग्राम थी, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, एक कंपोनेंट जो यहाँ से बाहर जा रहा था, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ओके। तो इनिशियली जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो तो v माइनस यू थी, जो जो वहाँ से वो v माइनस यू निकल रही थी, पर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसके कंपोनेंट्स। तो यहाँ से थीटा बना रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल आया था, ये आया था v माइनस यू कॉस थीटा के इक्वल। क्योंकि ये अपोजिट था इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया था। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ प्लस हो जाएगा, और हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी रो ए v माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो गया कर्व्ड केस। अब वह एक चीज़ और निकालनी है इस केस में, क्या निकालना है हमने, वर्क डन, क्योंकि प्लेट मूव कर रही है तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन मैंने आपको बताया है एफ एक्स, ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ओके, विच इज किसके इक्वल है, वो है u के इक्वल, विच इज द डिस्टेंस पर सेकंड वेलोसिटी, विच इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट विद विच इट इज मूविंग। ओके। तो एफ एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ से, तो ये भी यही वैल्यू हम पुट कर देंगे, बस इसमें u ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। ओके। यहाँ हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, तो ये आ रहा हमारे पास वर्क डन। ओके। तो अब हमारे पास 3 केसेस पढ़ लिए हमने मूविंग प्लेट में, एक हमने पढ़ लिया वर्टिकल का, एक पढ़ लिया इंक्लाइंड का। ओके। जिसका स्टेशनरी वाले ने अगर समझ आ गए हैं तो ये काफ़ी ईजी हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। और हमने एक पढ़ लिया कर्व्ड वाला। ओके। अब हम इसका जो हमने अभी किया, ओके, ये कर्व्ड वाला, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है आपको, न्यूमेरिकल में गिवन है कि ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर स्ट्राइक्स ए कर्व्ड प्लेट एट इट्स सेंटर। सो कर्व्ड प्लेट का केस है ये, या कर्व्ड वेन भी दिया हो सकता है कभी कभी। तो सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। द कर्व्ड प्लेट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो कर्व्ड केस का केस है और प्लेट मूव कर रही है, तो आपको सिंपली स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले चीज़ क्या, रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। ओके। अब 160 डिग्री से ये क्या हुआ, हमारे पास डिफ्लेक्ट हुआ है। सॉरी, इसको करेक्ट करना, यहाँ पे ये 165 डिग्री है। ओके, 165 डिग्री है ये। ओके, ये 165 डिग्री है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना इसको। तो मैंने क्या बताया था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, वो किसके इक्वल होता है, 180 माइनस थीटा के इक्वल। ओके। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपको 165 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप थीटा इसको ईजिली यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, अज्यूम द प्लेट फाइंड्स स्मूथ। ओके, अब हमें स्मूथ प्लेट बोला हुआ है, मीन्स की वेलोसिटी अगर जिस स्ट्राइक से अगर v माइनस यू से वेलोसिटी अगर स्ट्राइक करिए तो बाहर से जो इनलेट आएगा वो भी v माइनस, या आउटलेट आएगा वो भी v माइनस यू ही आएगा। निकालने को क्या बोला है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। ओके, ये तो इजीली निकाल लेंगे हम। सेकंड हमें बोला पावर ऑफ द जेट, पावर ऑफ द जेट, तो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन के यूनिट्स क्या बताए थे, न्यूटन मीटर पर सेकंड, जिसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, वाट के इक्वल। तो हम वर्क डन के फार्मूले से इजीली पावर भी निकाल सकते हैं, तो पावर के यूनिट वाट होते हैं, तो पावर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है हमको, गिवन हमारे पास डायमीटर ऑफ जेट दिया हुआ है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.075 मीटर। ओके। अब देखो एरिया भी निकाल लोगे आप जेट का, क्योंकि डाया दिया हुआ है, तो एरिया पाई बाई 4 टी स्क्वायर से एरिया निकल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ जेट भी दिया है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट भी दिया है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 165 भी दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ थीटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया 180 डिग्री माइनस थीटा होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो वहाँ से थीटा हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि हमने निकालनी थी फोर्स। तो फोर्स हमारे पास अभी निकाली हमने कब केस में, तो वो किसके इक्वल आई थी, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, तो आप सिंपली सिर्फ फार्मूला से वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें।
ठीक है। तो v माइनस यू किसके इक्वल है, रिलेटिव वेलोसिटी है, v माइनस यू है 20 माइनस 8, ठीक है। थीटा हमने निकाल चुके हैं, थीटा 15 डिग्री आ जाएगा और वहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमें पूछा है साथ में, हमें निकाला था पावर, तो पावर मैंने बताया था, पावर की यूनिट से हमने वर्क डन किया था, तो उसके यूनिट्स आए थे न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो जिसको हम वाट पे लिखते हैं, तो हम वहाँ से वर्क डन से क्या निकाल सकते हैं, पावर। तो वर्क डन का फार्मूला एफ एक्स इंटू यू, सिंपल यू से मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली वही फार्मूला से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे वाट में, किलोवाट में, विच बिकम्स इक्वल टू 10 किलोवाट। तो ये हमारे पास पावर ऑफ जेट आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ हमें और पूछी थी, वो पूछी थी हमें एफिशिएंसी ऑफ जेट निकालने के लिए। तो एफिशिएंसी ऑफ जेट कैसे निकालेंगे हम, एफिशिएंसी ऑफ जेट किसकी इक्वल होती है, वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मीन्स व्हाट, वर्क डन बाय द जेट पर सेकंड, दिस इज द आउटपुट, और इनपुट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम, दैट इज वर्क डन बाय द जेट पर सेकंड, जो हमने निकाला अभी यहाँ से ऊपर से, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट पर सेकंड, इन दोनों से हम ईजिली जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। काइनेटिक वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², इसी के इक्वल होती है, ओके। तो m को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, m को लिख लिया मैंने रो इंटू वी। अब v क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू व्हाट, वेलोसिटी, ओके। अब आप बोलोगे कि तो वेलोसिटी कैसे लिख लिया इसको, तो एरिया इंटू यूनिट लेंथ, जिसको हम मीटर में लिख सकते हैं, प्लस हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ हमें बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड, ये चीज़ बोली थी ना पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो डेट्स वाई हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर पहले से था, ओके। तो ये सभी वैल्यूज हमें पता है, ओके। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकल जाएगी हमारे पास 0.564, जहाँ तो आप बोल सकते हो 56.4% हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ जेट आ जाएगी। तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से आती है तो आप इजीली निकाल सकते हो, ओके। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, इसके बाद अभी तक ये कर्व्ड केस का न्यूमेरिकल हो गया, अब नेक्स्ट केस हमारे पास सेम केस है कर्व्ड का, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल का केस है, मीन्स द एंगल एट द इनलेट एंड द एंगल एट द आउटलेट विल बी डिफरेंट। तो वो थोड़ा लेंथी है, तो वो हम नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, थैंक यू।